What is this? Recording has started. चलें रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है. So we were talking about the structure of the form in which there are two attributes. One is action and another one is method. And in action there is name of a file. In action attribute there is name of file, and name of file is welcome.php and its method is post. So welcome.php indicates that the submitted data will be received and further action will be performed by welcome.php file, and the method by which this data will be sent to welcome.php file, the method is post. I'll explain later what is post and what is get. So first of all, let me show you the structure. Let's see the structure of welcome.php file. So this is our sample welcome.php file. You can see how this file is going to receive the data. So again, it is starting with HTML tag. There is also a body tag. So its whole structure is like HTML file, but its extension is .php. Why .php? Because within a file there are PHP tags. For example, from here you can see that this is a PHP tag, left less than and question mark PHP. This is starting tag, and ending tag is question mark and greater than. And within this there is echo $post name semicolon. These are basically, this is one of the PHP statement. And similarly, then there is another PHP statement that you can see at the bottom, and it is saying echo $post email semicolon. So what will happen? This PHP file will receive the data by post method. Once it will, since the data has been sent through a post method, this PHP file can receive data like this: dollar at the underscore post and the name of attribute which is to be picked. So $post is going to pick John. It is, so it will become welcome John. And $post mail is going to receive a mail that was sent through the text box, and the whole statement will become your mail address is and John Doe @example.com. So what will happen once these whole PHP tags will be converted into some sort of text. For example, the whole PHP tag has been converted into John, and the second PHP tag has been converted into john.doe @example.com. So it will become a complete statement. So you'll see that the whole PHP file will become a pure HTML file. So once server will send the process PHP file, it will be actually an HTML file. So it will have only HTML tags in it. PHP files tags will be converted into some sort of converted data. So this is how it works. Any question? I hope I have been able to explain.
जी कोई समझ आई है या फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आगे समझ? अलीना with me? यस सर। समझ आ रही है? सर अभी अभी ज्वाइन किया कॉल। यस सर। अभी अभी ज्वाइन किया है, अच्छा। जहीम से पूछते हैं, क्यों भाई जहीम, समझ आइए क्या बताया मैंने? जहीम गायब है बस लॉग इन करके। उजैर? यस सर, समझ में आ गया। अच्छा चलिए, अलीना भी आई है, मैं एक बार फिर थोड़ा समझा देता हूँ कि दिस इज बेसिकली अ फॉर्म which we made. I'm on slide in the previous slide. This is a form. It is an HTML file in which we have developed a form. It has two text fields. One is has name, and other one has name of email. Once we will submit the data, this data will be received by welcome.php file, and then this PHP file is going to process the data and then send back to the client. And this is a structure of welcome.php file. Here you can see how this data is being received. Here you can see it is this PHP. It is actually an HTML file, but there are PHP tags. That's why we have named this file as welcome.php. And this PHP tag, you can see it is written echo $post and name. So what will happen? The name, once name will be received, that name will be picked by this PHP file with this statement $post name. So whatever name will be sent, it will be received here, and the whole PHP statement will be converted into actual text. So for example, we send a text John, so the whole PHP tag will be replaced with this text John. So the statement will become welcome John. Welcome is here and welcome John. Similarly, the email will be received or picked with the statement $post email. So it will receive the email, and this PHP tag will be replaced with actual email which is received, and the whole statement will become your email address is John Doe whatever is received. So once these PHP tags will be replaced with a tag, then there will be no PHP tags. So actually what will happen, this PHP file will be transformed into a pure HTML file, and the HTML file is going to send back to the client. So the client, what client is going to receive is this welcome John, and your email address is johndoe@example.com. Okay, let me show you if how we can create these files in Visual Studio Code. For example, this is get welcome form, post welcome form .html. So this is and this is the HTML file. Let me format the document. So here you can see there is a body, and then there is a form. We are sending this data and this data, and then it will be submitted. Once it will be submitted, it will be received by post welcome.php. Let me open post.php file, and post welcome.php file. This is post welcome.php file. So this is that particular file welcome php echo post name, and other one is php echo $name. If I format it
What happens? Okay, so this is purely formatted document. So once data will be sent by HTML file, it will receive by PHP file, and this PHP file is going to return back the data back to the client. Okay, let me show you its execution. I right click on HTML file and I pick copy its path. I have to execute it through a server, localhost. So this is post welcome form.html. I have copied how I have done it. I have copied the path from there. I'm pasting it here. So you can see that htdocs, this path f zam htdoc, the whole this path is basically converted into a local host. Rest is the whole form. Now I'll press enter, so HTML file will be opened, and it is basically this particular file. This file is HTML file which is opened here. For example, let me add something. I put some email address and I press submit. So you can see that here it is post welcome.php. So actually what happened that this PHP file, the data was sent to the PHP file, and now PHP file is returned, but it is now pure text, no PHP tag. Let's inspect its code. If there is something, okay, I think you will not get it here in view page source. So this is what is returned back. So there is no PHP tag, and you can see its source. This is basically what is returned, no PHP tag. Whole data is converted and it is sent back to the client. So I hope the process is clear, how things are working. जी Hamza Mubashir. Hamza Mubashir, are you there? नहीं है. अलीना समझ आई है? प्रोसेस समझ में आ गया? Yes, sir. चलें, गुड हो गया. Okay, so I have talked to you that in fact what we have done, we have created two files. One file was .html file and other one is .php file. So we, with this form, for processing of this form, we have created two files. With submission is done with .html file, and then data is processed by .php file. But actually we don't. Okay, I'll explain it then. Okay, now you can see that here the method used was post, and the data with post was received with these variable $post and name of the file. Name is here, name is equal to name, and name is equal to email. This is what is picked by $post global variable. So other one is get method. It is again same HTML file, but the difference is that we are writing here it is a separate file, welcome.get PHP, because it has to process the data with get method. So the difference is that here method is get, and obviously we'll have a separate PHP file, and I'll demonstrate how we pick the data with get method.
So again, you will see a PHP statement. This is a PHP statement and we are picking a data with get method, get name and then get email. So same syntax, there is no difference as far as the syntax is concerned, but method is different. Here it is written at the $get and there it was $post, and we will get the same result. So I think it's the time to discuss get versus post. गेट वाला भी मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ. फॉर एग्जांपल ये मैंने फाइल खोली हुई है एंड दिस इज रिटन गेट वेलकम फॉर्म .html और इसमें भी फॉर एग्जांपल मैंने कोई नाम डाल देता हूँ. देन आई may use some sort of email and this is an HTML file. Once I'll press, I'll get, you'll find that it has been processed by get welcome.php file. But with get method, you can see that the data which is sent to the server is made part of URL. So I sent name is equal to blah blah blah, and then email is equal to faruqeadam@gmail.com. So, but the point, the first difference which you can see is that once we send data through get method, it is made part of the URL and the client can see that data. So similarly, if the data is of sensitive nature, that data can be hacked as well. So only insensitive data is sent through get method. If we use post method, let me tell you again, this was a post method file. If I press, so you get post welcome.php file, but the data is not visible in a URL and you have received back the data. So first difference between get and post is that the data in get method is made part of URL and then sent to the server. Any question up till now? Okay, now let's see a few other differences between get and post. Both get and post are treated as $get and $post. These are super globals, which means that they are always accessible regardless of scope, and you can access them from any function, class or file without having to do anything special. तो ये तो हो गई कॉमन जो इनके अंदर है, कॉमनैलिटी कह सकते हैं आप. $get is an array of variables passed to the current script via URL parameters. तो देखें get के अंदर हमने जो टर्म यूज हो रही है that is URL parameters. And $post is an array of variable passed to the current script via HTTP post method. तो ये method URL में आपको नजर नहीं आएगा डेटा. When to use get? The information sent from the form with the get method is visible to everyone. All variable names, values are displayed in URL. Get also has limits about 2000 characters on the amount of data it can send. तो एक लिमिटेशन ये आ गई.
Thirdly, however, because variables are displayed in the URL, it is possible to bookmark the page. This can be useful in some cases. तो जैसे आपने बुकमार्क की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हम जैसे अगर गूगल की सर्च देखें, आप गूगल की सर्च को भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी PHP, ये मैंने एक सर्च लगाई है, आपको सर्च में डेटा आ रहा है। आई कैन स्ट्रेट अवे कॉपी माई कंप्लीट सर्च बिकॉज द सर्च पैरामीटर्स आर इन URL। तो कई जगहों पे जहाँ में आपने अपना जो डेटा प्रोसेस है उसको भी सेव करना है, तो आप इसको अगर बुक मार्क करेंगे और जब भी खोलेंगे तो आप इसी पेज पे आएंगे, सर्च हुई हुई मिलेगी आपको। तो ये एक तरह की एडवांटेज है गेट मेथड की। तो ऐसी जगहों पे हम गेट मेथड यूज कर सकते हैं। Next, get may be used for sending non-sensitive data. Obviously, password वगैरह नहीं भेजनी चाहिए हमें. Get should never be used for sending passwords or other sensitive information. So this is a brief idea about the get method, and let's briefly discuss about the post method. Information sent from the form with post method is invisible to others. All names, values are embedded within the body of HTTP request and has no limits on amount of information to send. तो इसका मतलब है कोई डेटा की लिमिट नहीं है, जैसे वहाँ पे कुछ 2000 कैरेक्टर की लिमिट थी, यहाँ पे नहीं है, जितना मर्जी डेटा भेज सकते हैं, भेजना चाहें भेज सकते हैं पोस्ट मेथड से. Moreover, post supports advanced functionality such as support for multi-party binary input while uploading files to servers. तो बेसिकली फाइल अपलोडिंग वगैरह करनी है तो काफ़ी इसमें आप कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं. फिलहाल उसको हम नहीं डिस्कस करते, लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कोई अगर अपने कॉम्प्लेक्स काम करने हो तो देन यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ post method. However, because the variables are not displayed in the URL, it is not possible to bookmark the page. तो आप उसको किसी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को आप बुकमार्क नहीं कर सकते. Any question up till now? Okay, so we come to the next topic, that is PHP form validation. This and next chapter show how to use PHP to validate form data. Think security when processing PHP forms. वजह यह है कि जब भी आपने इनपुट डालनी है तो आपको यू शुड बी सिक्योरिटी कॉन्शियस, क्योंकि आपका डेटा कोई ऐसा मिलिशियस डेटा ना हो कि आपका पूरा सर्वर साइड का कोड ही उड़ जाए. तो इसलिए यू शुड बी, और कोई आपका डेटा प्राइवेसी, आपका डेटा कोई लूज़ ना हो जाए, कोई प्राइवेसी के इश्यूज ना आ जाएं. तो ये इसलिए whenever you are creating some input forms, you should be very careful and you should first think about the security and then anything else. So these pages will show how to process PHP form with security in mind. Proper validation of form data is important to protect your form from hackers and spammers. Cross-site scripting, XSS, is the type of computer security vulnerability typically found in web applications. SSX enables attackers to inject client-side script into web page viewed by other users. तो इसमें ये है कि हम जो URL के ज़रिए हम अपना कोड इंजेक्ट कर सकते हैं. URL के ज़रिए करें या टेक्स्ट फील्ड के ज़रिए करें, हम कोड इंजेक्ट कर सकते हैं.
Any JavaScript code can be added inside the script tag. तो हम फॉर एग्जाम्पल हमें कोई टेक्स्ट डेटा मांगा है तो हम उसके अंदर स्क्रिप्ट का टैग लिख दें तो स्क्रिप्ट भी साथ ही चला जाएगा। अब स्क्रिप्ट अब अगर आपने इस तरह लिखा है कि वो सर्वर पे पहुंचता है और सर्वर में प्रोसेस हो जाता है तो देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। अ हैकर कैन रीडायरेक्ट द यूजर टू अ फाइल ऑन अनदर सर्वर दैट फाइल कैन होल्ड मिलिशियस कोड। तो स्क्रिप्टिंग से कम ये तो किया ही जा सकता है कि आप बजाय इसके कि PHP अपनी सर्वर की PHP फाइल पे आए वो कहीं और रीडायरेक्ट करवा दें। तो इसलिए ये इनपुट फॉर्म्स में सिक्योरिटी का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन डू दैट। सो दिस इज अ सैम्पल HTML form. We have few fields. The HTML form contains various input fields required and optional text fields, radio buttons and submit button. तो यहाँ पे आप देखें एक name और email, these are required fields. Then website and comment, these are optional fields because there is no star we placed here. And then the gender field, again it is a required field, and then we can submit our data. अब हमने फॉर्म वैलिडेशन पे थोड़ा सा काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, we first of all we'll plan some validation rules. So the validation rules for the form above are as follows. For example हम कहते हैं जी name field is required and it must only contain letters and white spaces. तो एक तो हमने ये रूल लगा रहे हैं validation rule. For email we say that it is required and it must contain a valid email address, that is @ होना चाहिए उसके अंदर और कुछ डॉट्स भी होने चाहिए। अगर @ चेक करेगा और कुछ डॉट्स भी मिल जाता है एक या दो उसको तो देन इट विल कॉल इट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। देन वेबसाइट इज ऑप्शनल, इफ प्रेजेंट इट मस्ट कंटेन अ वैलिड URL, तो इसका भी URL वैलिड होना चाहिए। और इसके बाद कमेंट, it is optional and it should be a multi-line input field which is developed with HTML text area tag. And then gender, it is required, must select one. So this is how we are planning our form. तो हमने ये कुछ validations बना लिए हैं। अब हम उसको HTML फॉर्म बना रहे हैं। तो देखिए हमने लिखा जी नेम इनपुट फील्ड, ईमेल इनपुट फील्ड, वेबसाइट इनपुट फील्ड एंड कमेंट्स टेक्स्ट एरिया, और रोज की 5 हो सकती हैं, कॉलम 42 होंगे और ये टेक्स्ट एरिया हमने बना दिया। इसी तरह जेंडर के लिए हमने क्या किया, जेंडर के लिए हमने रेडियो बटन्स बनाए हैं। सो दे आर 3 रेडियो बटन्स, वन हैज़ अ वैल्यू फीमेल, अदर वन हैज़ अ वैल्यू मेल एंड द थर्ड वन हैज़ वैल्यू अदर्स। तो हमारा फॉर्म तैयार हो गया। सारा जो फॉर्म है इसका हमने इनिशियल जो HTML फॉर्म का हमने जो HTML कोड है वो हमने देख लिया है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे हम कि फॉर एग्जांपल हम मेथड लिखते हैं जी, मेथड पोस्ट है या जो भी है। एक्शन में वी आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस। एक्शन में हमने स्ट्रेट अवे किसी PHP फाइल का नाम देने के बजाय हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे, और ये है HTML स्पेशल कैरेक्टर्स, ये मेथड है एक, उसका बिल्ट इन मेथड है। देन वी आर पासिंग इट एन आर्गुमेंट सर्वर PHP सेल्फ। तो स्टैंडर्ड सिंटैक्स है इसका, स्ट्रेट अवे इसको बस आप यूज़ कर लें। करेगा क्या दैट वी कैन डिस्कस।
व्हाट इज सर डॉलर सर्वर PHP सेल्फ? इससे क्या होगा? The dollar server PHP self is a super global variable that returns file name of the current executing script. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पिछली एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि डेटा जो हम सबमिट कर रहे हैं, वी आर सबमिटिंग दैट डेटा थ्रू एन HTML फाइल, और वो डेटा रिसीव करती है एक PHP फाइल, और फिर PHP फाइल अपना डेटा जो हम वापस रिसीव करते हैं वो PHP फाइल रिसीव करते हैं जिसमें PHP टैग्स प्रोसेस हुए होते हैं। अब हम इसमें हम ये कर सकते हैं, और हमें दो फाइल्स बनानी पड़ती हैं, एक HTML फाइल और एक PHP फाइल। अब यहाँ पे हमने इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम PHP फाइल ही सबमिट करेंगे और डेटा प्रोसेस होके और वही फाइल हमें रिटर्न बैक होगी, यानी सबमिटेड फाइल एंड द फाइल रिसीव्ड जो कि वापस आएगी प्रोसेस होके, वो एक ही फाइल होगी। तो एक ही फाइल ये शो करने के लिए कि जो फाइल हम सबमिट करेंगे डेटा उसी फाइल पे वापस आए, तो हम ये यूज़ करते हैं डॉलर सर्वर PHP सेल्फ। तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि हमें देन नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू यूज़ जस्ट वन फाइल, और उसकी एक्सटेंशन होगी .php। उसी फाइल में डेटा सेंड करने का भी कोड होगा और डेटा रिसीव करने का कोड भी उसी फाइल के अंदर ही होगा। तो इन वेरिएबल्स का ये फ़ायदा हो गया। दूसरा है HTML स्पेशल कैरेक्टर्स मेथड। अब इस मेथड को जब हम ये पास करेंगे तो ये मेथड क्या कर रहा होता है? With the HTML special character function converts special characters to HTML entities. This means that it will replace HTML characters like less than or equal to, जो जनरली HTML टैग्स के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको ये स्पेशल कैरेक्टर में %LT, %GT इनमें कन्वर्ट कर देगा, सेमीकोलन, जो आपको पता है कि इसके यूनिकोड होते हैं, लेस देन का यूनिकोड है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये कन्वर्ट कर देगा उसको इसमें। इसका फ़ायदा क्या होगा? दिस प्रिवेंट्स अटैकर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द कोड बाय इंजेक्टिंग HTML और जावास्क्रिप्ट कोड। फॉर एग्जांपल HTML की कोई टैग आप इंजेक्ट कर रहे हैं या आप स्क्रिप्ट का टैग इंजेक्ट कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट टैग में क्योंकि ये लेस देन ग्रेटर देन वाले कैरेक्टर लगे होते हैं, तो ये इनको कन्वर्ट कर देगा इनके अंदर। तो वो जो जब ये टैग वहाँ सर्वर रिसीव करेगा तो सर्वर उसको प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि ये इनका इक्विवेलेंट डाला हुआ है हमने, तो सर्वर रिजेक्ट कर देगा कि ये स्क्रिप्ट नहीं है, वो ये समझेगा कि ये कोई टैग नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। So this is how we can prevent attackers from exploiting the code by injecting HTML or Java code. So this is what is called cross-site scripting code in attacks in form. So let's see the if form का मैं आपको एक सैम्पल दिखा दूँ। For example, form ये एक फॉर्म है, इट्स फाइल नेम इज .php, कोड सारा इसमें HTML कोड ही लिखा हुआ है, और इसमें डिफरेंट ये हमने कोड डाला हुआ है। इसमें PHP ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये PHP का कोड है, और फिर नीचे बाकी कोड है। तो बहरहाल इसके अगर हम फॉर्म को देखें, ज़रा फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज फॉर्म। तो फॉर्म में हमने लिखा मेथड पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, एंड एक्शन इज PHP को HTML स्पेशल कैरेक्टर्स, और फिर हमने उसके अंदर वही डाल दिया सर्वर PHP सेल्फ, कन्वर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स इनटू HTML एंटिटीज।
ठीक है, एक ये यूज़ कर रहे हैं हम और एक ये सर्वर ग्लोबल यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरा सिंटैक्स हमने फॉर्म के अंदर डाल दिया, एक्शन इज इक्वल टू में डाल दिया। तो हमें इसका क्या फ़ायदा होगा कि जो हमें जब हम सेंड करेंगे डाटा तो द डाटा इज गोइंग टू बी रिसीव्ड इन द सेम, यही PHP फाइल रिटर्न बैक होगी हमें विद प्रोसेस डाटा। तो इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म वैलिडेशन डॉट PHP, ये कौन सी है, फॉर्म वैलिडेशन, हाँ ये वाली खोल लेते हैं फाइल, इधर छोटी फाइल है, फॉर्म वैलिडेशन डॉट PHP, इसमें भी वही वाला टैग लिखा हुआ है। और ये फॉर्म वैलिडेशन, इसको हम खोलते हैं। तो ये PHP की फाइल है, लोकल होस्ट से हम प्रोसेस करेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ डालता हूँ, इसके अंदर ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट को डाल देता हूँ, कुछ कमेंट्स डाल देता हूँ, नाइस सबमिट। तो वापस भी आपको देखें तो फॉर्म डॉट PHP वैलिडेशन ही रिसीव हो रही है, वापस वही फाइल है, बट यू आर गेटिंग द डाटा एट द बॉटम। जो मैंने इनपुट किया वो मैंने रिसीव कर लिया इसी फाइल में ही, इसी डॉट PHP फाइल में ही मैंने वो डाटा रिसीव कर लिया। तो योर इनपुट का टैग अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे लिखा है योर इनपुट। सो आई एम रिसीविंग माई इनपुट इन दीज वेरिएबल्स, नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट, और यहाँ इन फाइल में रिसीव हो रहा है मेरा डेटा। इसको मैं आपको डिबग भी करके दिखाता हूँ। सो इफ आई हैव टू डिबग इट, आई हैव टू गो टू डिबग बटन, देन आई कैन चूज बोथ ऑप्शंस। पहले मैं आपको लॉन्च करंटली ओपन स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, नहीं इनपुट डालनी पड़ेगी मुझे, आई कांट डू दैट, मुझे Xdebug में जाना पड़ेगा ताकि आई कैन इनपुट माई डाटा थ्रू द सर्वर टू द वेब पेज। तो मैंने यूज़ किया लिसन फॉर Xdebug and I press button run. So you can see at the bottom there is a brown line which is indicating that it is listening for Xdebug PHP. Now I'll go to my local host. Let me break it down. मैं इसे छोटा करता हूँ। And I press refresh button. जैसे मैंने रिफ्रेश बटन दबाया, यहाँ पे मुझे ब्रेक पॉइंट पे कर्सर मिल गया, और ब्रेक पॉइंट पे इस वक्त अभी ये इनिशियलाइज होने वाले वेरिएबल्स, अभी वेरिएबल सारे अनइनिशियलाइज्ड हैं। आई प्रेस execute, so all the variables are initialized with blank empty strings. Now if server dot request method, अब ये चेक करेगा। अगर आप देखें तो सर्वर जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, और ये आपको नज़र आ रहा है कि इट इज़ एन एरे जिसके अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ये पूरी सर्वर की एरे है जिसके अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। इसको मैं यहाँ से भी खोल सकता हूँ, और मैं इसको सुपर ग्लोबल में अगर जाऊँगा तो ये सर्वर में मुझे नज़र आ रहा है कि एक ये रिक्वेस्ट वाला एरे है, रिक्वेस्ट एरे में 6 आइटम्स पड़ी हुई हैं, पोस्ट में 6 आइटम पड़ी हैं, और सर्वर के अंदर 52 आइटम्स पड़ी हुई हैं। सो इफ़ आई ओपन सर्वर तो इसमें आपको बहुत सारी आइटम्स नज़र आ रही हैं। और अगर मैं देखता हूँ रिक्वेस्ट एरे, तो इसमें भी ये देखें मेरे जितने भी डाटा मैंने फीड किया था वो रिक्वेस्ट एरे में पड़ा हुआ है। वाले रिक्वेस्ट वाले को मैं इसके अंदर पड़ा हुआ सारा कुछ। और पोस्ट वाले को अगर देखेंगे, पोस्ट एरे में भी 6 आइटम्स पड़ी हुई हैं। तो पोस्ट मेथड है क्योंकि मेरा आई हैव टू सेंड दिस फॉर्म टू पोस्ट मेथड। अच्छा, ये जो मेरी प्रीवियस वैल्यू थी वो पड़ी हुई है इस वक्त ना, अभी मैंने इसको
ये सारी अभी ज़ाया हो जाएंगी क्योंकि मैं फ्रेश एंट्री करूँगा इसके अंदर। तो बहरहाल इसको हम थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये अभी फ्रेश एंट्री के लिए तैयार है मेरा फॉर्म। आई पुट सम वैल्यूज हियर। मेल एंड आई सबमिट एंड नाउ आई एम going to receive data with fresh values। और ये मेरे वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए हैं। अगेन अगर ग्लोबल वेरिएबल्स को मैं देखूंगा तो मेरे पास पोस्ट एरे, ये पुरानी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी मैं जब सबमिट कर दिया मैंने, हाँ सबमिट कर दिया मैंने, सबमिट कर दिया तो ये मुझे यही वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मेल सेलेक्ट किया था मैंने, सबमिट का बटन कर दिया तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं मेरे पास पोस्ट एरे के अंदर, क्योंकि मैं बिकॉज आई एम यूजिंग अ पोस्ट मेथड। गेट मेथड इसलिए एरे ब्लैंक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट है, क्योंकि एक्चुअल है, हम क्योंकि पोस्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो इट विल बी ट्रू। और फिर हम एंटर हो जाएंगे इसमें एंड देन वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ अ मेथड टेस्ट इनपुट। टेस्ट इनपुट मेथड नीचे पड़ा हुआ ये है। ये मेथड कुछ डेटा पे काम करेगा, ये डेटा पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं नेम वेरिएबल में जो कुछ पड़ा हुआ है वो भेजूंगा यहाँ पे। वो जब इस फंक्शन में आएगा सबसे पहले उसका डेटा ट्रिम होगा, अगर ट्रिम करने की ज़रूरत है। ट्रिम का मतलब है कि स्पेसेस जितनी दाएं बाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर लिखा हुआ है स्ट्रिप स्प्लैशेस, कोई फॉरवर्ड स्लैश अगर हैं कोई डेटा में डले हुए वो रिमूव हो जाएंगे। फिर HTML स्पेशल कैरेक्टर्स, अगर कोई लेस दैन ग्रेटर दैन के सिंबल डले हुए हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। और फिर डेटा प्रोसेस होके इट विल बी रिटर्न बैक एंड देन दिस नेम विल बी सेव्ड इन द नेम वेरिएबल। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके। सो हेयर इट इज़ गोइंग टू कॉल टेक्स्ट इनपुट मेथड, और नेम वेरिएबल आपको ऑलरेडी, अभी इसके अंदर नेम में अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब ये नेम मेथड, ये जो यहाँ से डेटा रिसीव हुआ है इसको फारूक आदम। नाउ देयर विल बी 3 ऑपरेशन ऑन दिस नेम, ट्रिम, स्ट्रिप, स्लैश, और ये अभी पहले ट्रिमिंग होगी। तो ट्रिमिंग क्योंकि ऑलरेडी मेरा लेफ्ट साइड से कोई मसला नहीं है, मैंने कोई स्पेसेस नहीं छोड़ी हुई, तो इट विल रिमेन एज इट इज़। फिर ये स्ट्रिप स्लैशेस, स्लैश कोई नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा, आगे निकल जाएगा। स्पेशल करेक्टर कोई नहीं है, ये भी स्किप कर जाएगा। एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू रिटर्न बैक द डेटा। वो डेटा रिटर्न होगा यहाँ पे। नाउ दिस डेटा हैज़ बीन प्लेस्ड इन नेम वेरिएबल, ये यहाँ पे वेरिएबल में डेटा आ गया है। इसी तरह अब ये सेकंड पास में क्या करेगा, ये ईमेल रिसीव करेगा पोस्ट मेथड से और उसको प्रोसेस करेगा इसी मेथड से, फिर वेबसाइट को प्रोसेस करेगा, कमेंट को प्रोसेस करेगा, जेंडर को प्रोसेस करेगा, और फिर ये सारा डेटा जब प्रोसेस हो जाएगा इन वेरिएबल्स में डल जाएगा, नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट। फिर हम यहाँ पे जाके इको करेंगे। इको मीन्स प्रिंट करेंगे वेब पेज पर। तो हम नेम प्रिंट करेंगे, फारूक आदम ऑलरेडी आ चुका है इसके अंदर। ईमेल अभी इस वक्त ब्लैंक है, आना है अभी। तो आई कैन प्लेस माई ब्रेक पॉइंट हेयर एंड आई कैन प्रोसेस इसको। मैं ये ब्रेक पॉइंट ख़त्म करता हूँ ताकि जल्दी पहुँच जाए वहाँ पे। तो अब ये देखिए मेरे वेरिएबल्स तैयार हो गए हैं सारे, और अब यहाँ पे मेरे नेम में आ गया है फारूक आदम, ईमेल में आ गया ईमेल, वेबसाइट पे भी कुछ आ गया, कमेंट में भी आ गया, और जेंडर में भी आ गया। और यहाँ पे जैसे ही मेरा PHP टैग्स में बाहर आऊँगा तो ये डेटा सेंड हो जाएगा क्लाइंट को। तो लेट मी
सेंड इट। तो ये मुझे डेटा यहाँ पे रिसीव हो गया, जो सारा डेटा था वो मुझे इन वेरिएबल से यहाँ पे नीचे रिसीव हो गया। ठीक हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं इसका एक डेमो इसको दोबारा देता हूँ, क्योंकि इस पर मैं थोड़ा सा टाइम लगा लूँगा तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये जो फंक्शंस काम कर रहे हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हम कह रहे हैं कि जी ये जो मेथड है टेस्ट इनपुट मेथड, ये सबसे पहले ट्रिम करता है डेटा को, फिर ये स्ट्रिप स्लैशेस कर रहा है, और फिर HTML स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनको ख़त्म कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है। तो हम थोड़ा सा इस तरह का डेटा डाल के देखते हैं। सो लेट मी पुट माय नेम some sort of /, ठीक हो गया। इनपुट में वेबसाइट पे मैं कोई ये बैक स्लैश को करेगा, मेरे ख्याल में फॉरवर्ड को नहीं करेगा, बैक स्लैश को करेगा। ठीक है, कुछ स्लैशेस डाल दिए मैंने, फिर मैं यहाँ पे कोई आई एम राइटिंग समथिंग, लेकिन ये इसको प्रोसेस करेगा, लेकिन ये इनको पहले कन्वर्ट करेगा। तो ये कुछ मैंने डाल दिया इसके अंदर, दिस इज स्क्रिप्ट, I put other. Okay, now let me press the button. ये मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ इसको। ये रीस्टार्ट हो गया। ये मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ। Here I am on the break point. Let me process it. ये पहले मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दूँ। इसको हमने थोड़ा सा एनालाइज करना है, क्या करता है ये। So we are receiving first of all I am going to receive name, और नेम के साथ आप देख लें कि अभी जो मुझे रिसीव हो रहा है इस तरह का नेम रिसीव हो रहा है। एंड इट इज़ नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गोइंग टू ट्रिम इट। अच्छा, ट्रिम तो इसको नहीं करेगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा आगे स्पेस नहीं दी, तो ये एज इट इज़ को कर देगा। मैंने ट्रिम के लिए कुछ किया ही नहीं। लेट मी स्टॉप इट। अच्छा, और मैं इसको ये आ गया, मैं डालता हूँ। मैं थोड़ी सी स्पेसिस दे देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने स्पेसिस दे दी हैं ये ताकि ट्रिम करे। ये वेबसाइट है, इसमें मैंने कोई बैक स्लैश डाल दी है। कमेंट में मैं स्क्रिप्ट डालता हूँ। अब इसमें स्पेसिस भी हैं और इसमें भी कुछ स्पेसिस डाल देते हैं। नाउ आई सबमिटेड। तो सबमिट किया, लेकिन मैंने इसको ऑन नहीं किया था। आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस लिसन, देन आई हैव टू ऐड समथिंग। Okay, now I am pressing the submit button. So I receive the breakpoint, my data here, and now I take it. First of all, I'm going to receive the name, and here in name you can see there are spaces in the name. So it is going to
trim it. Once it will trim, now the data is, you can see a trim name. Spaces are gone. Now it is going to strip slashes. There are no strips. कोई एक्शन नहीं होगा इसमें. स्पेशल कैरेक्टर का भी कोई एक्शन नहीं होगा. ये रिटर्न होगा and we are getting a name data without spaces. अच्छा, अब अगले पे चलते हैं. आगे आ रही है ईमेल. ईमेल में मैंने कुछ बैक स्लैशेस ही डाली हुई हैं यहाँ पे. देखते हैं इनके साथ क्या करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिम में कोई एक्शन नहीं होगा. ट्रिम होता है दाएं बाएं, अगर एंड्स पे अगर स्पेसिस हो तो वो रिमूव करता है. नाउ स्ट्रिप्ड स्लैशेस, सो यू कैन सी all back slashes are removed from the data, and now once data will be returned, we'll see that there is an email address without any backslashes. Now we receive the क्या रिसीव कर रहे हैं हम, वेबसाइट. तो वेबसाइट में भी हमने बैक स्लैशेस डली हुई हमारी. तो ये बैक स्लैशेस देखें रिमूव हो गई. फॉरवर्ड स्लैशेस नहीं हुई, बैक स्लैशेस हो गई हैं. सो वी रिसीव्ड डेटा इन द वेरिएबल. ठीक है, दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं ये ट्रिम से रिमूव नहीं होती, जो एंड पे होती हैं वो रिमूव होती हैं. अच्छा, इसके बाद वी आर गोइंग टू रिसीव द स्क्रिप्ट, और इसके अंदर स्क्रिप्ट डला हुआ है. ये स्पेशल कैरेक्टर अप्लाई होगा इस पर. तो ये देखें स्पेशल कैरेक्टर से ये क्या बना है इसका. इसमें लेस देन ग्रेटर देन लग गए हैं इसके अंदर. तो अब जब ये सर्वर में इस तरह पड़ा होगा तो ये सर्वर विल नॉट कंसीडर इट सम सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट. तो इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा सर्वर. और जब ये वापस आएगा तो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि HTML में जब कन्वर्ट होगा वापस क्लाइंट को रिसीव होगा तो वो फिर सीधा हो जाएगा. So here you can see that now with the mail data में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने चेक बॉक्स लगाए हैं, उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते. So these are the variables which we are receiving. Comment, less than, greater than, फारूक आजम, मेल, SST, जो भी है सब था. अब ये जो है यहाँ से ये जो आखिर में वेरिएबल्स हैं दे आर गोइंग टू प्रिंट हेयर ऑन द पेज. सो ये डेटा प्रिंट हो गया. तो ये जो डेटा मैंने पेस्ट किया था उसी फॉर्म पे वापस आके उसने उसी जगह पे नीचे आके उसने डेटा प्रिंट कर दिया है. सो आई थिंक इट इज़ अ गुड डेमो फॉर गिविंग यू द आइडिया how we process our input fields. So now we move forward. थोड़ा सा मैं टाइम एक्स्ट्रा लूँगा क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी. So ये मैंने आपको ये वाला सारा डेमो में एक्सप्लेन कर दिया है क्या हो रहा है वहाँ पे. अच्छा, ये स्ट्रिपिंग वगैरह सारी एक्सप्लेन कर दी है मैंने. ये आपको ये वाला कोड भी एक्सप्लेन कर दिया. ये वाला फॉर्म भी एक्सप्लेन कर दिया. ओके, नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. इसको फर्दर थोड़ा सा और हम इस पे काम करेंगे इस फॉर्म के ऊपर. अब हम क्या काम करेंगे. This chapter shows you how to make input fields required and create error messages if needed. अब required कैसे डिक्लेयर करना है, क्योंकि ये वैलिडेशन रूल है हमने जो ओरिजिनली प्लान किए हुए हैं. तो एक यहाँ पे देखिए हम थोड़ी सी इफ स्टेटमेंट्स लगा रहे हैं यहाँ पे. अगर फॉर एग्जांपल नेम हमारा वो है एम्प्टी है तो चेक करेगा जब ये पोस्ट मेथड से नेम रिसीव करता है, पोस्ट नेम रिसीव करता है, उसी वक्त चेक करेगा कि ये एम्प्टी तो नहीं है. इफ इट इज एम्प्टी देन इट विल
नेम एरर वेरिएबल में ये स्ट्रिंग डाल देगा, नेम इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज क्या करेगा, जो भी हमें रिसीव हुआ है दैट वी आर गोइंग टू प्लेस इन द नेम वेरिएबल। तो या तो नेम वेरिएबल फिल होगा या फिर नेम एरर इनिशियलाइज हो जाएगा विद नेम इज रिक्वायर्ड के साथ। आई होप ये इफ स्टेटमेंट्स, पहली स्टेटमेंट ही समझ आ गई कैसे हमने रिक्वायर्ड फील्ड कैसे मैनेज करनी है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस फर्स्ट इफ स्टेटमेंट? कोई सवाल है? मैं अपने आप से तो नहीं बातें कर रहा? नहीं सर सुन रहे। ठीक है, तो ये इफ स्टेटमेंट, दिस हाउ वी कैन, इट्स अ सिंपल लॉजिक वी कैन, अगर तो ब्लैंक आता है तो नेम एरर को इनिशियलाइज कर देगा, इसको बाद में हम प्रिंट कर लेंगे, और अगर अदरवाइज वो नेम वेरिएबल में डाल देगा जो भी हमने रिसीव किया मेथड। सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही कर लेंगे हम। अच्छा, इसमें इसी तरह वेबसाइट को अगर हम देखते हैं कि जी वेबसाइट एम्प्टी है वेबसाइट, तो वेबसाइट में ब्लैंक छोड़ देगा इसको, अदरवाइज जो कुछ भी रिसीव हुआ है वो वेबसाइट वेरिएबल में डाल देगा। तो वेरिएबल ही है, इसमें कोई इशू नहीं है। कमेंट ऑप्शनल है तो इसमें कोई चेक नहीं लगाया हमने, सिंपली हमने अगर ब्लैंक स्ट्रिंग डाल दी है, अगर ब्लैंक है तो, अदरवाइज जो आया है वो हमने कमेंट में डाल दिया। तो ये बेसिकली है ऑप्शनल फील्ड को हैंडल कैसे करना है हमने। अगेन अ सिंपल लॉजिक, जेंडर ब्लैंक हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हम क्लिक ना करेंगे, देखो अगर जेंडर को क्लिक नहीं किया तो ये एम्प्टी मिलेगा हमें, तो हम जेंडर एरर को इनिशियलाइज कर देंगे, जेंडर इज़ रिक्वायर्ड, और अगर कुछ सिलेक्ट कर लिया है तो जो भी सिलेक्ट किया है वी आर गोइंग टू प्लेस इट इन जेंडर वेरिएबल। तो रिक्वायर्ड फील्ड को कैसे हैंडल करना होता है, आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल लॉजिक, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेट्स सी, अब डिस्प्ले कैसे करेंगे हम मैसेज को कि जी रिक्वायर्ड फील्ड है। तो these are some HTML कोड। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, ये एक स्पैन बनाया है हमने, स्पैन HTML स्पैन टैग। HTML स्पैन टैग में हमने एक क्लास इसको दे दी है, क्लास एरर है। क्लास एरर का काम कुछ भी नहीं है सिवाय इसके के टेक्स्ट कलर को रेड कर देती है ये स्पैन क्लास। तो अगर स्पैन के अंदर मैं स्टैरिक लिखूंगा तो ये स्टैरिक रेड कलर का नज़र आएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने इसी स्पैन के अंदर हमने ये PHP इको नेम एरर डाल दिया है। अगर नेम एरर इनिशियलाइज होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा, अगर इनिशियलाइज नहीं होगा नेम एरर तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं नजर आएगा हमें। सो दिस इज हाउ डिस्प्लेइंग इज हैंडल्ड। इस स्टेटमेंट में कोई शक हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें कि कर क्या रहे हैं हम। ये मैं रिपीट कर देता हूँ, देयर इज अ स्पैन, स्पैन में हमने स्टैरिक प्रिंट करना है वेब पेज पे, तो ये स्टैरिक रेड कलर का होगा क्योंकि हमने एक एरर क्लास बनाई है स्टाइल में और हमने फॉन्ट कलर उसका रेड कर दिया है, तो ये स्टैरिक हमें रेड कलर का नजर आएगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया PHP को नेम एरर। तो अगर नेम एरर पीछे हमने इनिशियलाइज हो गया हमारा कि नाम नेम वाज एम्प्टी, ओनली देन नेम एरर विल बी इनिशियलाइज्ड। तो जो नेम एरर की इनिशियलाइजेशन थी, ये नेम इज रिक्वायर्ड वो लिखा हुआ आ जाएगा। और इसी तरह बाकी भी ऐसी है, यही बेसिक लॉजिक यही है जो लगाई है। तो ये मैं इसको आपको पेज दिखाता हूँ। दिस इज अ पेज, और इस पेज में आप देखेंगे तो पहले तो मैं आपको क्लास दिखाऊं। ये हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग बनाया और स्टाइल टैग में हमने एक डॉट एरर क्लास डाली है और उसका कलर हमने ये रख दिया है, दिस कलर इज बेसिकली रेड कलर। तो रेड कलर हमने बना दिया। अब ये क्लास जहाँ भी यूज़ होगी उसका फॉन्ट टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा। तो अब जितने भी हमने वो जहाँ जहाँ रेड शो करना है हमने,
पहले मैं इसको ज़रा आपको रन करके दिखा दूँ। तो ये अब मैं ये उठा रहा हूँ, इसका पाथ कॉपी किया मैंने, पाथ कॉपी करके आई एम गोइंग टू प्लेस इट हेयर। ये प्लेस कर दिया है, सारी बैक स्लैशेस हैं, लेकिन बैक स्लैशेस को जो ब्राउज़र होता है वो खुद ही फॉरवर्ड में चेंज कर देता है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है, जो मेरा एब्सोल्यूट पाथ है इसको मैंने लोकल होस्ट में कन्वर्ट करना है, लोकल होस्ट। नाउ आई विल प्रेस एंटर। तो ये देखें, ये रिक्वायर्ड फील्ड रेड से लिखा हुआ आ रहा है, ये क्लास एरर की वजह से लिखा हुआ आ रहा है, ये क्लास एरर की वजह से लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज दैट। अगर इसको मैं इंस्पेक्ट टैग में दिखा दूं आपको तो देखते हैं कुछ नज़र आता है कि नहीं आता। तो ये नज़र आ रहा है मुझे, ये फॉर्म है, फॉर्म को खोल लेते हैं, नेम इनपुट, ठीक है, सारी फील्ड आपको नज़र आ रही है, कौन कौन सी फील्ड कहाँ पड़ी हुई हैं। ओके, सो मैं कोई भी फिल नहीं करता, मैं आई जस्ट प्रेस द सबमिट बटन। देखिए टाइम लेता है ये, क्योंकि ये सर्वर पे जाता है, सर्वर इसको प्रोसेस करके वापस भेजता है, इसलिए टेक सम टाइम। इट इज़ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, नॉट द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो देखें इसके आगे लिखा हुआ है स्पैन नेम इज़ रिक्वायर्ड, जो एरर नेम वाला इनिशियलाइजेशन थी, ये एरर ईमेल की इनिशियलाइजेशन है, ये जेंडर इनिशियलाइजेशन है, ये दोनों फील्ड ऑप्शनल थी, तो ये इन पे कोई हमें वो नज़र नहीं आ रहा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द कोड ऑफ, अगेन इसको भी डीबग मोड में चला सकते हैं और इसको लाइन बाय लाइन आप एनालाइज कर सकते हैं। एंड दिस कोड इज़ आल्सो अवेलेबल हेयर, अगर आप देखना चाहें तो। ये वाला कोड है, ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं और ये कोड है। इसको कोड को आप विजुअल स्टूडियो में ले जाके डीबगिंग वगैरह कर सकते हैं, ऑल यू कैन डू एवरीथिंग। आगे चलते हैं। फॉर्म URL and email. This chapter shows how to validate names, emails and URLs. And for this there are standard patterns. Straight away ये basically regular expressions लिखे गए हैं वैलिडेशन के लिए। थोड़ा बहुत C में आपको सिखाया भी जाता है एक्सप्रेशन लिखने। इन एक्सप्रेशंस को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आपको इसके वीडियोस भी मिल जाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस की, वहाँ से आप समझ सकते हैं। बहरहाल ये आप स्ट्रेट अवे कॉपी पेस्ट भी मार दें, इट्स गोइंग टू वर्क। तो ये है नाम के लिए वैलिडेशन है। अगर हम ये डाल देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इट इज़ ओनली गोइंग टू एक्सेप्ट द लेटर्स एंड वाइट स्पेसेस, अगर आप ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन डाल देंगे तो। एंड इट इज़ विथ preg match, दिस इज़ अगेन बिल्ट इन फंक्शन ऑफ PHP, इसको आप यूज़ करें। स्ट्रेट अवे ये कोड डाल दें तो ये नाम को चेक करेगा कि लेटर्स वाइट स्पेसेस ही हैं, इसके अलावा तो नहीं है कुछ। इसके बाद ईमेल के लिए स्पेशल मेथड है फिल्टर VAR अंडरस्कोर, और जो भी आपका ये वेरिएबल रिसीव होगा ईमेल का, ये एक इनपुट इसका ये वेरिएबल होगा जो यहाँ रिसीव करेंगे हम, और दूसरा फिल्टर वैलिडेशन ईमेल, आपने यही स्ट्रेट अवे लिखना है एंड इट इज़ गोइंग टू डू जो वर्क। वो बाकी जो @ और इस तरह की चीज़ें वो चेक कर लेगा।
अगर नहीं मैच करेगा तो इट विल गिव यू द एरर इनवैलिड मेल फॉर्मेट। इसी तरह अगर अपने वेबसाइट देखने के वेबसाइट वैलिड है कि नहीं है, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा आपको नज़र आ रहा है एक्सप्रेशन। स्ट्रेट पे कॉपी पेस्ट करें इसको और उसको फिट कर दें, और अगर ये मैच करेगी आपका तो ठीक है, वरना ये लिखा हुआ ये इनिशलाइज हो जाएगा वेरिएबल आपका वेबसाइट एरर इनवैलिड यूआरएल के साथ। सो दिस ऑल आर रेगुलर एक्सप्रेशंस, और स्ट्रेट अवे इनके वो आपको मिल जाते हैं रेडीमेड टेम्पलेट्स। ओके, सो कंप्लीट फॉर्म, ये सब कुछ अगर इन सब में डाल दें तो एक कंप्लीट फॉर्म बनाया गया है जो कि ये सारी चीज़ें सपोर्ट कर रहा है। सो दिस चैप्टर शोज हाउ टू कीप वैल्यूज इन द इनपुट फील्ड्स व्हेन यूजर हिट्स द सबमिट बटन। और इसमें to show the values in input fields after the user hits the submit button, we add little PHP script inside value attribute of the following input fields: name, email, web addresses, वो मैंने आपको दिखाया है पीछे। फिर ये है कि in the comment text area field we put script between text area tags. Little script outputs the value of $name, email, website and comments. Then we also need to show which radio button that was checked. For this we must manipulate checked attribute, not the value attribute. तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये कोड है इसका। अगर मैं यहाँ पे भी रखा हुआ है मैंने कंप्लीट फॉर्म, नहीं ये नहीं है, फॉर्म कंप्लीट डॉट PHP। तो ये आपको इस पे टैग भी नज़र आ रहे हैं, बॉडी के अंदर कौन कौन से वेरिएबल रखे हुए हमने। दीज ऑल आर द वेरिएबल्स जो हमने फॉर्म के लिए इनिशलाइज डिक्लेयर किए हैं। देन देर इज़ टेक्स्ट इनपुट मेथड, ये मेथड वही है जो मैंने आपको बड़ा तफसीली डेमो दिया है इसका, वही मेथड यूज़ हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद H2 एक टैग डाला है जिसमें फॉर्म वैलिडेशन आ रही है। फिर ये फॉर्म का टैग है, फॉर्म टैग में आप देखेंगे बहुत सारी इनपुट वैल्यूज डली हुई हैं। इस पूरे फॉर्म को हम क्लोज करते हैं। फॉर्म हमने, बल्कि फॉर्म के अंदर भी चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज इनपुट टैग, और ये बिल्कुल वही फॉर्म है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी फॉर एग्जांपल जेंडर में थोड़ा सा चेंज किया है, हमने चेक करने के लिए कि ये वैल्यूज it determines if the variable is declared and different than the null। ठीक है, ये एक हमने वेरिएबल यूज़ किया इसके लिए। और जनरली इसको ये देखें, ये हमने जो डाले हुए हैं, ये जो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर सारे चेक्स डाले हुए हैं हमने। फॉर एग्जांपल ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डाला हुआ है इफ स्टेटमेंट में, तो ये चेक करेगा सारे वेरिएबल्स को। ये देखें कितनी लंबी चौड़ी थी, एक रेगुलर एक्सप्रेशन डाला हुआ है जो डिस्कस किया हमने। सो इफ़ वी एग्जीक्यूट दिस फॉर्म, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से इसका मैं पाथ कॉपी करूँगा। आई विल गो टू द ब्राउज़र एंड देन आई विल प्लेस इट हेयर फॉर एग्जांपल, और htdoc से पहले सारा आई विल कन्वर्ट इनटू अ लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट में ले लिया मैंने, और आई एम प्रेसिंग द एंटर बटन। सो दिस इज़ अ फॉर्म जिसमें पूरी अब लॉजिक लगी हुई है। अगर मैं स्ट्रेट अवे सबमिट बटन दबाता हूँ तो ये मुझे लिखा हुआ आ गया और इनपुट कोई नहीं हुई। अब मैं कोई इनपुट डाल देता हूँ, ठीक है, और जेंडर भी कोई डाल देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। तो एक तो ये देखिए इसने चेक किया है, कह रहा है जी आपका URL इनवैलिड है, क्योंकि इसने HTTP चेक किया होगा मेरे ख्याल में, इसलिए
HTTP का टैग चेक किया होगा, इसलिए वो डला हुआ नहीं है इसके अंदर। HTTP, ओह क्या कर रहा हूँ, HTTP google.com। दोबारा प्रेस करके देखते हैं क्या करता है। अच्छा स्पेस डाल दिए मैंने, मेरे ख्याल में एक स्पेस एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने, www. तो ये यहाँ से रिमूव हो गया है। अब ईमेल में अगर मैं @ नहीं डालता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इट शुड, मैं ये डाल देता हूँ हैश, प्रेस करता हूँ बटन, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। इसके अंदर मैं 1 2 3 4 डाल देता हूँ, नाम के अंदर प्रेस करता हूँ तो आगे ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेसेस आर अलाउड। ठीक है, तो ये एक ऐसा सैम्पल है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होगी तो आप एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके पीछे और जो एक सिक्योरिटी चेक्स जो लगाने चाहिए वो सारे लगे हुए हैं इस फॉर्म के अंदर। तो अपनी वेबसाइट पे आप जब भी फॉर्म बनाएं तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस कोड, क्योंकि इस कोड की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। जब इसको आप एक दफ़ा खुद देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। सो दिस ये हमारा एंड हो गया। फॉर्म को हमने डिस्कस कर लिया आज। कल हम इंशाल्लाह MySQL के साथ डिस्कशन करेंगे कि MySQL के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है PHP डेटाबेसेस के साथ। सो दिस एंड्स टुडेज लेक्चर। तो एनी क्वेश्चन क्यूरी कोई है इस लेक्चर की तो यू आर मोस्ट वेलकम। क्यों जी मोहम्मद अवैस, आर यू देयर? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है फिर क्लोज करें आज का लेक्चर। जी सर। जी सर। ओके जी, थैंक यू, फिर अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।